Good morning students, welcome to the TSN school. Today we'll continue with our last chapter, chapter 3rd, an empire across 3 continents. Now come to the page number 68. Controlling workers. Slavery was an institution deeply rooted in the ancient world, both the Mediterranean and in the Near East, and not even Christianity, when it emerged and triumphed as the state religion in the 4th century, seriously challenged this institution. It does not follow that the bulk of the labor in the Roman economic was performed by slaves. That may have been true of a large part of Italy in the Republican period. Under Augustus, there were still 3 million slaves in a total Italian population of 7.5 million, but it was no longer true of the empire as a whole. Slaves were an investment, and at least one Roman agricultural writer advised landowners against using them in contests where too many might be required, for example harvests, or where their health could be damaged, for example by malaria. These considerations were not based on any sympathy for the slaves, but on hard economic calculation. On the other hand, if a Roman upper classes were often brutal toward their slaves, ordinary people did sometimes show much more compassion. See what one historian says about a famous incident that occurred in the reign of Nero. जो स्लेवरी थी रोमन साम्राज्य में, उसकी जड़ें बहुत ही गहरी थी, जो रूटेड थी बहुत डीपली. तो 4th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी को जब स्टेट रिलीजन बना दिया गया, तब भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, और फिर भी क्रिश्चियनिटी स्लेवरी को यानी दास प्रथा को नहीं हटा पाई थी. और जब इटली की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय में, तो अधिकतर जो काम होते थे वो स्लेव्स द्वारा ही किए जाते थे. और उसकी बारे में अगस्टस ने लिखा है कि उस टाइम जो पॉपुलेशन थी इटली की 75 लाख, उसमें 30 लाख जो थे लोग वो स्लेव्स ही थे. इन्हीं जो स्लेव्स थे या जो दास थे, उन्हें एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता था. जो कुछ रोमन राइटर ने इनके बारे में लिखा भी है कि अपने जो लैंडओनर्स थे उन्हें कहा है कि अपने जो स्लेव्स हैं उनको ऐसी जगह मत भेजो जहाँ बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स की ज़रूरत हो, स्लेव्स की ज़रूरत हो, या फिर जहाँ उनकी जो हेल्थ है उसको डैमेज होने का खतरा हो, मलेरिया जैसी बीमारियों से. लेकिन ये उनकी हेल्थ को देख के या उनकी भलाई के लिए नहीं करते थे, बल्कि इसमें बहुत खर्चा हो सकता था. उनकी जो देखभाल है, उनके जो इलाज है, अगर वो बीमार हो गए तो उनके खर्च को बचाने के लिए ये एडवाइस दी गई थी. इन स्लेव्स के प्रति जो अपर क्लास है उनका जो रवैया होता था, जो बिहेव होता था, वो बिहेवियर वो बहुत ही क्रूर ब्रूटल होता था. जबकि जो कॉमन मैन थे या जो जनरल थे लोग, उनकी वो स्लेव्स के प्रति थोड़ी दयालुता रखते थे, सिंपैथी रखते थे. ऐसी ही एक घटना के बारे में जिक्र है जो नीरो के शासनकाल में हुई थी और जिसका जिक्र टैसिटस ने किया हुआ है. On the treatment of slaves. Soon afterwards, the city prefect Lucius Pedanius Secundus was murdered by one of his slaves. After the murder, ancient customs required that every slave residing under the same roof must be executed, but a crowd gathered, eager to save so many innocent lives, and rioting began. The Senate House was besieged. Inside there was feeling against excessive severity, but the majority opposed any change. The senators, favoring execution, prevailed. However, great crowd ready with stone and torches prevented the order from being carried out. Nero rebuked the population by edict and lined with troops the whole route along which those condemned were taken for execution. ये घटना है एक शहर के बारे में. उसके शासक ल्यूसियस पेडेनियस सेकंडस का उसके एक दास ने मर्डर कर दिया था. तो उस मर्डर के बाद में एशियंट कस्टम था ये कि वहाँ रहने वाले, उस घर में रहने वाले जितने भी स्लेव्स हैं उन सभी को मौत की सज़ा हो जाती थी या फांसी दे दी जाती थी. लेकिन जो बहुत से स्लेव्स जहाँ रहते होंगे वहाँ उनको बचाने के लिए
जो क्राउड थी वो इकट्ठी हो गई और उन्होंने निर्दोष लोगों को बचाने के लिए एक तरह से राउटिंग कर दी, यानी कि दंगा शुरू हो गया। तो सीनेट भवन को भी घेर लिया गया, लेकिन सीनेट में जो सीनेटर्स थे उसमें से बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट थे। कुछ ही लोग थे जो चाहते थे कि ये कस्टम चेंज हो, लेकिन बाकी सदस्य कोई भी चेंजेस नहीं चाहते थे। तो बाकी लोगों ने फांसी देने के ही फेवर में थे। तो उनकी बात को जो नीरो था उसने मान लिया, और जो बाहर जो लोग थे वो लोग इकट्ठे थे उसको, जो इस कानून था या जो एक परंपरा थी उसे बदलने के लिए वो अपने हाथों में पत्थर और मशालें लेकर तैयार खड़े थे। लेकिन उनको रोकने के लिए नीरो ने एक अभिलेख निकाला या एक आदेश दिया कि उनको दूर रखा जाए इस घटना से, और उस पूरे रास्ते पे जहाँ पर जो कंडेम्ड थे या जो दोषी थे उनको जिस रास्ते से ले जाया जा रहा था वहाँ पर सीज कर दिया उसे, और पूरी तरह से जो सेना थी उसके द्वारा कवर करके और दोषियों को ले जाया जाने लगा, यानी उन्हें आखिर फांसी दी गई और जो चेंजेस थे वो नहीं हुए। नेक्स्ट, as warfare became less widespread with the establishment of peace in the 1st century, the supply of slaves tended to decline, and the users of slave labor thus had to turn either to slave breeding or to cheaper substitutes of such as wage labor, which was more easily dispensable. In fact, free labor was extensively used on public works at Rome precisely because an extensive use of slave labor would have been too expensive. Unlike hired workers, slaves had to be fed and maintained throughout the year, which increased the cost of holding this kind of labor. This is probably why slaves are not widely found in the agriculture of the later period, and at least not in the eastern provinces. On the other hand, they and freedmen, that is slaves who had been set free by their master, were extensively used by business managers, where obviously they were not required in large numbers. Masters often gave their slaves to freedmen capital to run businesses on their behalf, और इवन बिजनेसेस टू देयर ओवन। तो जब फर्स्ट सेंचुरी के समय में जब वॉरफेयर कम थे, युद्ध कम थे, तो शांति का समय था, तो उस समय जो स्लेव्स की सप्लाई थी वो बहुत कम हो गई थी। तो उसकी वजह से जो लोग लेबर को यूज़ करते थे या स्लेव ऑनर्स थे, यूज़र्स थे, उन लोगों ने स्लेव्स को बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए उनके पास दो ही रास्ते थे कि या तो वो स्लेव ब्रीडिंग करे या फिर जो बहुत कम चार्जेस में, कम पैसों में जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनको एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ करें। और क्योंकि जो फ्री लेबर्स थे उनका चार्जेस भी कम होता था, कम पैसों में वो काम करते थे, तो जो रोमन में पब्लिक वर्क होते थे वहाँ पर इसी तरह के स्लेव्स का यूज़ होता था। और जो हायर्ड वर्कर्स थे उनको कम खर्चे की ज़रूरत होती थी, उन्हें बस पैसा देना होता था, जबकि जो स्लेव्स थे जिनको दास जो बनाकर रखते थे अपने घरों में लोग, उनको मेंटेन करना और उनको फीड करवाना, भोजन पानी देना पूरे साल तक, ये बहुत महंगा पड़ता था। इसीलिए जो बाद के समय में स्लेव जो थे उनकी या जो स्लेव लेबर था उसके प्रकार में कमी आई और हायर करके वर्क करवाना ज़्यादा इजी लगने लगा। तो इसी तरह के जो ईस्टर्न प्रोविंसेस है वहाँ पर इस तरह की जो दास प्रथा थी वो कम दिखाई देती है बाद के समय में। और दूसरी तरफ देखा जाए जो मालिक होते थे या जो स्लेव रखते थे वो लोग अपने दास को या स्लेव्स को या तो अपना बिजनेस उनके अंडर में काम करवाते थे या फिर अपने बिहाफ पर उनको बिज़नेस संभालने के लिए देते थे, या फिर उनको खुद को ही बिज़नेस के लिए पैसे देते या फिर उनका खुद का बिज़नेस उन्हें करने देते थे। जो फ्रीड, यहाँ पर एक टर्म है स्लेव ब्रीडिंग, जिसका मतलब होता है कि जो स्लेव्स हैं या जो नौकर हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा करने के लिए कहना, ताकि जो उनके बच्चे हैं उन्हें भी इस काम में लगाया जा सके, स्लेवरी काम में उन्हें लगाया जा सके। The Roman agricultural writer paid a great deal of attention to the management of labor.
Columella, a first century writer who came from the south of Spain, recommended that landowners should keep a reserve stock of implement and tools, twice as many as they needed, so that production could be continuous. For the less of slave labor, time exceeds the cost of such times. There was a general presumption among employers that without supervision no work would ever get done. So supervision was paramount for both free workers and slaves. To make supervision easier, workers were sometimes grouped into gangs or smaller teams. Columella recommended squads of teams, claiming it was easier to tell who was putting in effort and who was not in work group of the size. This shows a detailed consideration of the management of labor. Pliny the Elder, the author of a very famous natural history, condemned the use of slave gangs as the worst method of organizing production, mainly because slaves who worked in gangs were usually chained together by their feet. रोमन एग्रीकल्चर राइटर्स जो थे उन्होंने लेबर मैनेजमेंट की तरफ बहुत ध्यान दिया। उन्हीं में से एक राइटर हैं जो कि कोल्यूमेनस है और ये आए थे साउथ स्पेन से। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो लैंड ओनर्स हैं उन्हें रिज़र्व में स्टॉक रखना चाहिए टूल्स का और इम्प्लीमेंट्स जो है उनका, ताकि जो जब उत्पादन नहीं या जो जब प्रॉब्लम हो कुछ भी तो उस समय उनका प्रोडक्शन चलता रहे, उसमें दिक्कत नहीं आए। क्योंकि कई बार जो लेबर्स हैं उनकी वर्क में या फिर उनकी टाइम कंज्यूमशन बहुत ज़्यादा होता था उनका, इसलिए उनका खर्च भी ज़्यादा होता था, उसकी वजह से उनका वर्क रुके नहीं, प्रोडक्शन रुके नहीं, इसीलिए उन्होंने रिज़र्व रखने के लिए की एडवाइस दी। और ये एक जनरल प्रिजम्पशन था या अनुमान था लोगों का कि जो वर्कर्स हैं उन पे अगर उनका ध्यान नहीं रखो या सुपरविज़न नहीं किया जाए तो वे ढंग से वर्क नहीं करते हैं। तो कोल्यूमेनस ने ये एडवाइस दी कि जो लेबर्स हैं उनके ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे पता चल सके कि कौन सा लेबर या कौन सा वर्कर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। और इसका विरोध किया था जो प्लिनी द एल्डर हैं, क्योंकि प्लिनी नाम के 2 लेखक हुए हैं। इनमें प्लिनी जो है एल्डर, उनने अपने बेटे का नाम भी प्लिनी रखा था, तो पिता को प्लिनी द एल्डर के नाम से जाना जाता है। उनकी फेमस बुक है नेचुरल हिस्ट्री, उसमें ये जो प्रथा थी या जो ग्रुप बनाने की जो रिवाज था उसको कंडेम किया, उसके लिए उन्होंने रोष जताया। क्योंकि जो ग्रुप थे उन्हें उसमें जो वर्कर्स थे उन्हें चेन से उनके पैरों में बांध दी जाती थी और इस तरह से उनको बांध कर रखा जाता था, इसीलिए उन्होंने इस तरह से ग्रुप डिवीज़न के लिए मना किया। नाउ नेक्स्ट, all this looks draconian, but we should remember that most factories in the world today enforce similar principles of labor control. Indeed, some industrial establishments in the empire enforced even tighter controls. The elder Pliny described conditions of frankincense factories of Alexandria, where he tells us no amount of supervision seemed to suffice. A seal is put upon the workman's aprons. They have to wear a mask or a net with a close mesh on their heads, and before they are allowed to leave the premises, they have to take off all their clothes. Agricultural labor must have been fitting and disliked, for a famous edit of the early 3rd century refers to Egyptian peasants deserting their village in order not to engage in agricultural work. The same was probably true of most factories and workshop. ये जिस तरह के रूल्स वहाँ पर कंट्रोल फैक्ट्रीज़ में होता था या वर्कशॉप पर होता था वो बहुत ही ड्रैकोनियन लग सकता है, क्रूर या कठोर हो सकते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो वर्तमान में फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर इसी तरह के रूल्स फॉलो होते हैं, इसी तरह की कंडीशंस ऑफ कंट्रोल, लेबर कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह से जो रोमन साम्राज्य था वहाँ पर भी इसी तरह और इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होते थे। उन्हीं में से एक
के बारे में जो प्लिनी है, एल्डर प्लिनी, वो बताते हैं, अलेक्जेंड्रिया की एक फ्रेग्रेंसेस फैक्ट्री है उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ, और ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर जो परफ्यूम है या खुशबू वाली जो बनाई जाती हैं उनके बारे में उससे रिलेटेड है वर्क ये। वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनको उनके कपड़ों पर एक सील लगाई जाती है और उनको एक नेट का एक तरह टाइट मास्क पहनना होता था और उन्हें वर्क प्लेस छोड़ने से पहले अपने कपड़ों को वहीं छोड़ना पड़ता था। तो इस तरह बहुत ही कंट्रोल या बहुत ही कड़े नियम को बनाए जाते थे फैक्ट्रियों के लिए, वर्कर्स के लिए। इसके साथ ही जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनको लोग डिसलाइक करते थे क्योंकि वो बहुत ही फिटिंगिंग रहती या फिर थके हुए से रहते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते थे उन पर, तो उसकी और बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता था, उसकी वजह से लोग उन्हें डिसलाइक करते थे। और एक इजिप्शियन पेजेंट्स के बारे में है डिस्क्राइबिंग कि उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में काम नहीं करना पड़े, इसके लिए उन्होंने अपने गाँवों को छोड़ दिया, गांव छोड़कर वो जाने लगे थे ताकि उन्हें जो एग्रीकल्चर वर्क है उसमें जब लगाया ना जा सके। तो इस तरह के जो नियम हैं वो मोस्ट ऑफ फैक्ट्रीज़ और वर्कशॉप में होते थे।